That is why this is not a preferred method of preparation. Next है आपके पास reduction of nitriles. Reduction of nitriles is very easy. You can have RCN. Now, in the presence of LiAlH4, or you can use H2 in the presence of nickel. Okay, you can use H2 in the presence of nickel. Next, you can also use sodium amalgam in the presence of ethanol. All of this is going to give you 2 hydrogens on carbon and 2 hydrogens on nitrogen. So you'll have R, CH2, and H2. Next, look here, reduction of amides. Reduction of amides will be same thing. You have R, C double bond O, NH2. बस यहाँ पे आपको क्या करना है? This carbonyl carbon में जो C double bond हो गया उसको हटा देना है. तो उसको हटाने के लिए you can use LiAlH4. Second step में water, and you will get R, CH2, NH2. ठीक है? And there is last method of preparation that is important. Gabriel phthalimide synthesis. ठीक है, Gabriel phthalimide synthesis. तो बेसिकली आपके पास थैलेमाइड होना चाहिए. This is phthalimide. C double bond O, C double bond O. सबसे पहले reaction with a base KOH or NaOH. This hydrogen is acidic because the conjugate base will be stabilized by the resonance with this carbonyl carbon and also the benzene ring. सबसे पहले तो आपको मिल जाएगा nitrogen. This double bond is as it is. This double bond is as it is. And this nitrogen will have a negative charge, which will be stabilized by this K positive, and we have got a salt here. Next आपके पास यहाँ पे use any alkyl halide RX, and this nitrogen atom is going to attack on the alkyl group. This X is going to leave as KX. Basically आपको मिलेगा nitrogen atom with R, double bond O and double bond O like this. Okay. Now you have to add what? Water in the presence of a base. So H2O in the presence of OH negative. और आपको यहाँ से देखिए वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से ब्रेक करेगा यहाँ पे इन दोनों को. एक हाइड्रोजन इधर और OH इसके पास. ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर और OH इसके पास. ठीक है, इस कार्बन के पास OH. But because it is in basic condition, तो OH नहीं रह के, that will be in carboxylate ion. C double bond O, O negative, O negative, C double bond O. Now, if you are using something like NaOH or KOH, etc., then if you are using Na, then it will be stabilized by Na positive. But यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? RNH2. Okay. एक और है ना? So how do you get Na plus? You are using some base, right? अगर आप NaOH यूज करें तो Na plus मिल जाएगा, KOH यूज करें तो K plus मिल जाएगा. ठीक है? Okay, sir. So basically इतना तो मिलेगा ही मिलेगा. आप इतना लेके चलिए अगर आपको लिखने के लिए आया तो. Next is one more that is important, Hoffman bromamide degradation. Hoffman bromamide degradation. Hoffman bromamide degradation में सबसे पहले आपको अमाइड चाहिए. Some R, C double bond O, NH2 in the presence of Br2 and NaOH.
ठीक है, या तो आपको Br2 और NaOH दे सकते हैं, या फिर आपको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे NaOBr। ठीक है, इन दोनों का रिएक्शन से यही बनता है, एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू, ये यहाँ से C डबल बॉन्ड बस आपको उड़ा देना, क्या मिल जाएगा RNH2 प्लस यू गेट Na2CO3, Br से आपको NaBr मिल जाएगा, आई थिंक देयर विल बी सम वाटर आल्सो। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, C डबल बॉन्ड को उड़ा देना। ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का मतलब एक कार्बन लेस, सो इफ आई एम स्टार्टिंग विथ 1 2 3 कार्बन एटम्स, अगर यहाँ पे हमने लाया NaOBr तो आपको क्या मिलेगा 1 2 3 कार्बन एटम्स, तो फिर 2 कार्बन एटम और NH2 मिल जाएगा। Sir, can you show the very first one? सॉरी, Can you show the very first one? वेरी फर्स्ट वन, Yes. these are the method of preparation। नेक्स्ट चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 है बेसिसिटी। नंबर 1 क्या है आपके पास, बेसिसिटी ना। बेसिसिटी की अगर हम बात करें, बेसिसिटी इज डिटरमाइंड बाय ओनली वन थिंग, दैट इज फर्स्ट थिंग क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन रिच साइट। ठीक है, एंड इसी वजह से अगर आप अमीन्स की बात करें इन गैस फेज, अमीन्स इन गैस फेज, ठीक है, अमीन्स की बात करें अगर गैस फेज में, तो दिस इज एक्सप्लेन्ड ओनली बाय प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो गैस फेज में जब भी आपसे सवाल किया जाएगा, है ना, गैस फेज में जब भी सवाल किया जाएगा तो आपके पास क्या होगा, 3 डिग्री अमीन इज गोइंग टू बी व्हाट इज गोइंग टू बी मोस्ट बेसिक, followed by 2 degree and then followed by 1 degree. But in aqueous phase, solvent effect also determines basic nature, है ना, also determine basic nature, because जब भी प्रोटोनेट होगा, if you have 3 R groups और सिर्फ आपके पास एक हाइड्रोजन है, राइट, now it is protonated, अब वाटर के साथ ये कितना अच्छा से, like think about how the water is going to solvate this one rather than this one। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इन aqueous state solvent effect भी मैटर करता है और इलेक्ट्रॉन रिचनेस तो मैटर करेगा ही, बिकॉज इट इज अ बेस। ठीक है, तो दैट इज व्हाई द केस इन aqueous state इज डिफरेंट। केस क्या है, aqueous state में डिफरेंट है। और आपसे मान लीजिए पूछ दिया जाए कि बेसिक नेचर बताइए, aqueous फेज है या गैस फेज नहीं है, जनरली आपको किसको मान के चलिएगा, aqueous फेज को। ठीक है, गैस फेज के बारे में बोला जब, तब आप 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री लिखिएगा, तो जनरली किसको मान के चलना है, aqueous फेज को ही मान के चलना है। ठीक है, एमसीक्यू की बात अगर करें तो अगर आपको सब्जेक्टिव आंसर में पूछ लिया बेसिक नेचर समझाने के लिए, तो दोनों बता दीजिएगा। इन गैस फेज ओनली प्लस आई इफेक्ट इज डिटरमाइनिंग द, that means the electron richness is determining the basic nature, but in aqueous phase solvent effect also determines the basic nature। ठीक है, सॉल्वेंट इफेक्ट में क्या होता है, आपको 2 का बस याद रखना है ना, अगर याद हो आप लोगों को तो। किस किस के याद रखना है, एक तो
इथाइल का और मिथाइल का, है ना। सो इफ यू हैव, याद भी है कि नहीं याद है इन लोगों की, याद रखता है। सी, जब आपके पास क्या हो, इथाइल का केस हो, दैट मीन्स द आर ग्रुप अटैच विद नाइट्रोजन एटम इज इथाइल, तो वहां पे क्या होता है 2 3 1, ठीक है। 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। अगर आपके पास मिथाइल लगा हुआ हो, मिथाइल लगा हुआ रहने से क्या होता है बताइए, 2 1 3, ठीक है। मिथाइल लगने से क्या होगा, 2 1 3। C2H5 वोल्ट वाइज NH सबसे ज्यादा, उसके बाद C2H5 होल थ्राइस नाइट्रोजन, उसके बाद C2H5 NH। यहाँ पे आपके पास मिथाइल में CH3 होल ट्वाइस NH, CH3 NH2, ये NH2 होगा यहाँ पे, CH3 होल थ्राइस CH3 होल थ्राइस, ठीक है। अच्छा, और भी आपको बेसिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb, है ना, एंड ऑल्सो बेसिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb। कभी कभी पीकेबी के केस में पूछ लेते हैं, है ना। तो दिस इज, ये तो हमने जो ऑर्डर बताया किसका है, बेसिक नेचर का है। और जब पीकेबी के वैल्यूज पूछेंगे तो पीकेबी की वैल्यूज जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगी। राइट दिस टाइम, ये तो हो गया बात अमीन्स के बारे में, है ना, रिगार्डिंग अमीन्स, है ना। और एक और चीज लिख लीजिए, अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप, ठीक है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। अब बात करते हैं अमीन्स वर्सेस एनिलीन की, ठीक है। अमीन वर्सेस एनिलीन, Sir, can you scroll up for a minute, please? हाँ जी श्योर। That's चलिए, तो देखिए अमीन और एनिलीन की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे अमीन इज सिंपल RNH2, लेकिन एनिलीन में NH2 का लोन पेयर जो होता है दैट इज डीलोकलाइज्ड, ठीक है। डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या होता है, दिस नाइट्रोजन एटम कैन नॉट डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू अ पर्टिकुलर एसिड, ठीक है, देयरफॉर इसका बेसिक नेचर ज्यादा, ठीक है। प्लीज लिखिए, एक सवाल आया था इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लीज, सबसे पहली बात, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट एनिलीन, है ना, ये अराइल अमीन नहीं है, दिस इज CH3 है यहाँ पे, ओके। सो दिस इज नॉट इन कॉन्जुगेशन, तो दिस इज, ये तो अमीन हो गया प्राइम, मतलब अल्काइल अमीन हो गया ये,
If I talk about this is aniline for sure, but it is substituted aniline. यहाँ पे ये CH3 जो है ना, it is going to give it more electron. नेक्स्ट आपके पास ये प्योर एनिलीन है. प्योर एनिलीन सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या हो रहा है, द बेंजीन रिंग इज टेकिंग द इलेक्ट्रॉन, है ना, इस तरह से बेंजीन रिंग इज टेकिंग द इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई इट इज लेस इलेक्ट्रॉन रिच. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच ये होगा बिकॉज देयर इज नो डिलोकलाइजेशन. ये द डिलोकलाइजेशन इज प्रेजेंट, बट द CH3 इज गिविंग सम मोर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देन दिस एंड देन दिस. Now let's talk about substituted aniline. So CH3 is giving CH3 is plus I, right? Effect. So it will be more negative charge, right, on nitrogen. हाँ जी, more electron rich ना, तो that is why. तो So then it will be more basic, right? हाँ, it is more basic. So this order is for, Sorry. so this order is for basicity, right? हाँ हाँ, you are saying this will be most basic. Yes, sir. नहीं, मोस्ट बेसिक नहीं होगा ना, बिकॉज यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर तो चला जा रहा है ना, लोकलाइज नहीं है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन पेयर है. ठीक है, Okay. इसके कंपैरिजन यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन, यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज्यादा है, तो इस वजह से इसको ज्यादा दिया गया है. गॉट इट. Okay, sir. फर्स्ट वाले में दिस इज लोकलाइज, ये कहीं नहीं जा रहा है, भले ही इसको कोई इलेक्ट्रॉन, एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसको मिल रहा है वैसे तो देखा जाए तो यहाँ से, है ना, ये भी तो आपके पास दिस इज गोइंग टू गिव यू इलेक्ट्रॉन पेयर ना. ठीक है, Yes. दिस इज नॉट अल्काइल ग्रुप ओनली. अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूटेड anilines की. Now we know that electron richness is directly proportional to basic nature. That means electron donating group increases basic nature, electron withdrawing group decreases basic nature. यहाँ पे अगर हम बात करें, दिस इज प्लस m, दिस इज गोइंग टू बी नथिंग. यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, माइनस m हो रहा है. दिस इज मोस्ट, उसके बाद ये, एंड देन लास्ट नहीं है. चलिए मूविंग, असैलेशन ऑफ अमीन्स लिखिए नेक्स्ट. असैलेशन ऑफ अमीन्स. असैलेशन ऑफ अमीन्स में आपके पास मान लीजिए है CH3 CH2 NH2, ओके, प्लस वी हैव CH3 C डबल बॉन्ड O Cl. अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन आटम है इसके पास है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे जो कार्बन आटम है दिस इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन एंड इट इज अटैच्ड विद क्लोरीन. यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. इट इज गोइंग टू अटैक हियर, दिस क्लोरीन इज गोइंग टू लीव एंड यू आर गोइंग टू गेट समथिंग like this here. First of all, 2 carbon atoms, nitrogen atom, and it is having 2 hydrogens. एक ऊपर हाइड्रोजन रख दिया, एक नीचे हाइड्रोजन रख दिया. इसका बॉन्ड इस कार्बन के साथ which is having double bond, तो इसका बॉन्ड कार्बन के साथ which is having double bond, और यहाँ पे एक आ गया क्या, CH3. ठीक है, now this nitrogen has 4 bond, that is why इसके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज. अब ये जो Cl नेगेटिव यहाँ से निकला ना, the Cl negative is going to attack on this hydrogen atom. It is going to give the electron back to nitrogen atom, and you will be having NH C double bond O CH3. Okay, so you can use even aniline for this, है ना. और इसके साथ हम लोग I can use
acid halide, or I can use anhydride also. C double bond O, oxygen, double bond over CH3. यहाँ पे भी सेम चीज अटैक यहाँ पे करेगा, दिस इज गोइंग टू लीव, और आपको मिलेगा नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, अटैच विद C double bond O एंड देन CH3। अब उसके बाद इसमें पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे जो आपके पास C double bond O negative है, this O negative is going to attack on this hydrogen, this is going to give back the electron pair to nitrogen, and you will have nitrogen with one hydrogen, C double bond O CH3। ठीक है, इसको हम लोग को फिर से देखने के लिए मिलेगा कहाँ पे, वी विल आल्सो सी दिस इन द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। जब नाइट्रोजन एटम को नाइट्रोजन एटम के एक्टिविटी को घटाना रहता है ना, बिकॉज दिस इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, हाईली एक्टिवेटिंग के ग्रुप की वजह से ऑर्थो एंड पैरा तीनों पोजीशंस में सब्स्टिट्यूएंट लग जाते हैं। टू डिक्रीज दैट एक्टिविटी वी ऐड एसिटाइल ग्रुप, किस वजह से, बिकॉज इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अब ऑक्सीजन के साथ भी रेजोनेंस में रहेगा, तो थोड़ा सा कम बेंजीन के साथ रेजोनेंस में रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए एक बार, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। अच्छा, कार्बाइल अमीन, अच्छा एक और चीज हम बताते हैं, दिस रिएक्शन ना 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री के साथ होगा, ठीक है, 3 डिग्री के साथ नहीं होगा, बिकॉज एक हाइड्रोजन निकल रहा है नाइट्रोजन से ना, तो एक हाइड्रोजन कम से कम चाहिए, 3 डिग्री में एक भी हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है। राइट, नेक्स्ट कार्बाइल अमीन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन इज गिवन ओनली बाय 1 डिग्री अमीन, दैट इज 2 अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, ठीक है, 2 हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अच्छा, अगर ये सिर्फ 1 डिग्री अमीन देगा, दैट मींस इट इज अ टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन, है ना, टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन। चलिए नेक्स्ट लिखिए, RNH2, this is 1 degree amine plus you're using chloroform CHCl3 in the presence of KOH, और आपको क्या मिलेगा, RNC। Now this RNC is alkyl isocyanide, it has a very foul smell, and this foul smell is the detection or the positive test for कार्बाइल, है ना, तो ये पॉजिटिव है, प्लस 3KCl प्लस 3H2O। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, इसको और बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, कोई भी हो, दिस R कैन बी अल्काइल भी हो सकता है ये, और ये अराइल भी हो सकता है, ठीक है, both of them are going to give you this test। चलिए आगे बढ़े, हाँ जी आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, मूविंग ऑन, रिएक्शन विद HNO2। जो प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड होता है, सॉरी जो प्राइमरी एमीन होता है RNH2, it reacts with ONO, that is HNO2। HNO2 का स्ट्रक्चर असल में ना कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, OH यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहता है, so it is ONO, no,
When you react, first of all, what is going to happen? Diazonium salt बनता है into positive Cl negative, ठीक है। आप पूछिएगा सर Cl तो हमने लिया नहीं सर, Cl कहाँ से आ गया? ठीक है, HNO2 कहाँ से बनता है बताइए? NaNO2 प्लस HCl से बनता है HNO2, ठीक है। तो ये Cl नेगेटिव कहाँ से आ रहा है? यहीं से आ रहा है। ओके, नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी अनस्टेबल, एंड यहाँ पे आपके पास वाटर के साथ थोड़ा सा भी रिएक्शन करा दीजिए, मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट करके ये क्या बना देगा? अल्कोहल बना देता है। ओके, इट मेक्स अल्कोहल। नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल जाता है, और उसके बाद आपको क्या निकल जाएगा यहाँ से? यू विल हैव HCl, ठीक है। वाटर का H और यहाँ का Cl नेगेटिव, दैट इज गोइंग टू गिव यू HCl। अगर आपके पास एनिलीन हो, तब ये बनाएगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, तो इस यहाँ पे आप ना ये प्लस N2 गैस जो इवॉल्व करता है प्लस HCl, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो समटाइम यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन alkyl and aryl amines। जब अल्काइल अमीन रहेगा तो क्या होगा? N2 गैस का इवोल्यूशन होगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपके पास हिंसबर्ग रिएजेंट। ध्यान से देखिएगा, हिंसबर्ग रिएजेंट आपके पास होता है कुछ इस तरह का। सुना देते हैं इसको, Cl सल्फर डबल बॉन्ड O इधर बेंजीन रिंग, ठीक है। ये स्ट्रक्चर काफी सिमिलर है किससे? इससे। यू हैव योर एसिड हैलाइड, यहाँ पे अटैक होगा, सेम अटैक यहाँ पे होगा, क्लोरीन निकल जाएगा। ओके, सो प्लीज सी द रिएक्शन। योर हिंसबर्ग रिएजेंट जब आपके पास क्या हो? 1 डिग्री अमीन हो। 1 डिग्री अमीन यानी कि फॉर एग्जांपल लेट अस टेक सम NH2 लाइक दिस प्लस chlorine sulfur double bond O and then the phenyl ring. Now nitrogen lone pair electron, it is going to attack on the sulfur atom। यहाँ से आपके पास क्या निकल जाएगा? क्लोरीन निकल जाएगा, and you are going to have नाइट्रोजन, ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन, bonded to sulfur double bond O and then the phenyl group। नाइट्रोजन के पास क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, रिएक्शन करा दीजिए आप इसको। यहाँ से जो Cl नेगेटिव निकला, Cl नेगेटिव ही इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, दिस हाइड्रोजन इज गोइंग टू गिव बैक द इलेक्ट्रॉन्स टू नाइट्रोजन, एंड आपके पास बचा नाइट्रोजन विद 1 हाइड्रोजन bonded to sulfur double bond O and then the benzene ring। अब ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे हमारे पास, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। जब ये एसिडिक है, दैट मींस दिस कंपाउंड विल बी सॉल्युबल इन बेस, ठीक है। एक हाइड्रोजन था, सेम चीज अगर हम करेंगे, आई विल हैव एक नाइट्रोजन है यहाँ पे हमने एक CH3 रख लिया और यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन रख लिया, ठीक है। आई एम रिएक्टिंग दिस विद अगेन Hinsberg reagent, sulfur double bond O and then the phenyl ring। सेम रिएक्शन होगा, ठीक है। नाइट्रोजन अटैक करेगा, जो प्रोडक्ट दिखेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, नाइट्रोजन ऊपर CH3 नीचे हाइड्रोजन, सल्फर डबल बॉन्ड O देन द फेनाइल ग्रुप। अब यहाँ पे आपके पास जो क्लोरीन निकला था, क्लोरीन अटैक करेगा कहाँ पे? दिस नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव चार्ज, अटैक ऑन हाइड्रोजन एटम विल गिव बैक द इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद आपको मिलेगा नाइट्रोजन के पास एक CH3, यहाँ पे एक सल्फर डबल बॉन्ड O एंड देन द फिनाइल ग्रुप। नाउ दिस इज नॉट एसिडिक, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ पे नो एसिडिक हाइड्रोजन। Therefore
डज नॉट डिसॉल्व इन बेस, बेस में ये डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। एंड व्हेन यू हैव 3 डिग्री अमीन, नाइट्रोजन एटम, इधर CH3 इधर भी CH3। अब यहाँ पे इसका रिएक्शन ही नहीं होगा, Cl सल्फर डबल बॉन्ड O, सल्फर डबल बॉन्ड O एंड देन द बेंजीन रिंग, ठीक है। रिएक्शन हो भी सकता है यहाँ पे, दैट इट कैन अटैक द सल्फर एटम हियर, बट इट इज गोइंग टू, ईच एंड एवरी रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, है ना। इसके अटैक भी कर लिया तो वापस ये इधर यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाएगा और क्लोरीन अटैक करके सल्फर के साथ बॉन्ड बना लेगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल, ठीक है। यहाँ पे कोई चार्ज स्पीसीज नहीं है, यहाँ पे 2 चार्ज स्पीसीज है, ओके। until unless chlorine is having some hydrogen to attack, तब तक ये वाला कंपाउंड आगे नहीं बढ़ेगा। अब जब तक आगे नहीं जाएगा तब तक ये वापस चला जाएगा यहाँ पे। so therefore with 3 degree amine there is no reaction, यानी कि you have 1 degree amine, you have 2 degree amine and you have 3 degree amine, और साथ में क्या है आपके पास, हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट जब 1 डिग्री अमीन रिएक्ट करता है तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ क्या मिलता है आपको, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ मिलता है एक प्रोडक्ट that is soluble in base। 2 डिग्री के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट का तो क्या मिलता है, प्रोडक्ट तो मिलता है बट नॉट soluble in base। 3 डिग्री के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है आपको, नो प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो NH2 ग्रुप क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड इट इज व्हाट, वेरी पावरफुल and very powerful activating group। इसी वजह से क्या होता है, अगर आप ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, ठीक है, आपने सीधा सीधा ब्रोमिनेशन करा दिया, एनिलीन दिया और आपने बोला Br2 के साथ रिएक्ट कर लो, किसके साथ, aqueous Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर, क्या मिलेगा आपको, एक प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड NH2 Br in ortho, Br in para, Br in again ortho यहाँ पे, ठीक है। We are getting what, ट्राई सब्स्टिट्यूट। बट अगर आपको करना है मोनो सब्स्टिट्यूशन, then you have to first of all react this with double bond O oxygen CH3। इससे क्या होगा आपके पास, इससे this nitrogen atom will have, अभी हमने ये प्रोडक्ट बनाया था, it will form this product, ठीक है। so this is what acylation of aniline। acylation से क्या हो जा रहा है यहाँ पे, this nitrogen atom का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन it is diverted। पहले क्या था, अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रहता तो it is only activating, it is only giving electrons to the benzene ring, but now it can give electron to the benzene ring and also it can give the electron to the carbonyl group here। ये divert हो चुका है। now since the activating power is a bit less in acylated, तो फिर यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनता है that is the para substituted product। पहले में आपने ये डाल दिया, सेकंड में आपने डाल दिया Br2, ठीक है। सेकंड में क्या डाल दिया आपने, Br2 डाल दिया, and now what you are going to get, you are going to get here you have nitrogen, one hydrogen, C डबल बॉन्ड और CH3, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा Br। अब इससे आपको क्या करना है, एनिलीन में कन्वर्ट करना है, तो तीसरा स्टेप है आपके पास, तीसरा स्टेप है सिर्फ आप सिर्फ H3O+, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, OH यहाँ पे, so will get the aniline, ये Br वैसी का वैसी, NH2 Br plus double bond O and OH।
ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड इस वजह से नहीं मिलता बिकॉज दिस इज अ बल्की ग्रुप व्हिच इज गोइंग टू हिंडर द अटैक ऑन द ऑर्थो पोजीशन. Sir, can you scroll a little up? Little up. सवाल भी देखते हैं ना. ठीक है, ब्रोमिनेशन हो गया. सल्फोनेशन भी इसी तरह से देख लीजिएगा, है ना. एक जो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये एनिलीन does not show fetal craft reactions, neither alkylation nor it is showing acylation due to salt formation with AlCl3 यूज करते हैं ना हम, salt formation with AlCl3. ठीक है, AlCl3 के साथ salt formation हो जाता है and nitrogen gains a positive charge which deactivates the benzene ring. सल्फोनेशन वाला जो रिएक्शन है वो एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो उसको देख लीजिए जरा. दिस इज सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन. तो सबसे पहले आपके पास क्या है, व्हेन यू यूज कंसंट्रेटेड H2SO4 देन इट फॉर्म्स जो A स्ट्रक्चर होगा आपका, ये बेंजीन रिंग रहा आपका. now this nitrogen atom it will gain one hydrogen atom because concentrated H2SO4 क्या है, it is an acid or aniline act as a base and it will give you NH3. यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और आपको क्या मिल जाएगा, नेगेटिव. ठीक है, यहाँ पे क्या मिल गया, आप HSO4 नेगेटिव मिल गया. and once you are going to heat it, it is going to give you NH2 and यहाँ पे SO3H. ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे दिस इज इन इस तरह से कुछ इसका इक्विलिब्रियम रहता है, NH3 पॉजिटिव
NSO3 नेगेटिव। क्या बोलते हैं इस तरह का है? When you have positive and negative charge in the same compound, it is known as Zwitter ion. Zwitter ion कहते हैं ऐसी चीजों को, ठीक है? This is sulfonation. ये नोट हमने आज नहीं लिखा है, लेकिन आई थिंक आप लोग के नोट्स में ये है that Gabriel thalamide synthesis is not a preferred method for preparing aromatic primary amines, है ना? aromatic primary amines को हम लोग नहीं बना सकते हैं किससे? Gabriel thalamide synthesis. Why is that? Because SN होता है, ठीक है? जो रिएक्शन होता है ना, वो क्या होता है? It is SN and aryl halide they do not undergo nucleophilic substitution reaction. Basically हम क्या लिखना है इसके लिए? Aryl halides don't undergo SN, ठीक है? इसी वजह से हम लोग नहीं बनाते हैं। If you remember this, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज K पॉजिटिव, और हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज किया था? वी यूज्ड RX, ठीक है? Now this can only be alkyl group, ये aryl नहीं हो सकता। Why? Because this is a nucleophilic substitution, nucleophile अटैक कर रहा है यहाँ पे, and aryl halides they do not undergo SN। मेन रीजन इसका यही है। और हम देखते हैं कुछ सवाल मिलेगा तो फिर आप लोग को लिख सकते हैं। चलिए ये सवाल लिख लीजिए। डाइजोनियम सॉल्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना? खुद से डाइजोनियम सॉल्ट में कुछ ही रिएक्शंस हैं सिमिलर टाइप। 1 मिनट। An aromatic compound A on heating with Br2 and KOH, ठीक है? ध्यान रखिए, Br2 and KOH क्या है ये? Br2 and KOH डिग्रेडेशन वाला रिएक्शन है, ठीक है? Hoffman bromide degradation, Br2 and KOH forms a compound B with molecular formula C6H7 H7 nitrogen. E, this is reacting with Br2 plus KOH C6H7 and nitrogen दे रहा है आपको, which on reacting with CHCl3 and alcoholic KOH, ठीक है? ये कौन सा रिएक्शन हो गया बताइए? CHCl3 वाला कौन सा रिएक्शन है? कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, ठीक है? That means when you have C6H7 nitrogen reaction with CHCl3 and KOH, it gives a foul smelling product that is C, ठीक है? C देता है आपको, ये क्या है? This is foul smelling, this is B। यानी कि C6H7 N is 1 degree amine, ठीक है? तो कार्बन 6 है आपके पास और हाइड्रोजन 7 है, एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है, दैट इज NH2। इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। यू कैन सी वी हैव 6 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 हाइड्रोजन हियर, सो 7 हाइड्रोजन्स, ठीक है? तो दिस इज योर B। ए क्या होगा इसका? ए के लिए आपको क्या करना है? बस इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में C डबल बॉन्ड O लगा देना, NH2, दिस इज योर A। और जो C होगा, C इज गोइंग टू हैव व्हाट? NC बॉन्ड, है ना? नाइट्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड होगा? NC बॉन्ड होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा के C का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, NC। अब उन्होंने देखिए क्या पूछा है, रिएक्शंस नहीं पूछा है, तो ठीक है, आप लोग को रिएक्शन के बारे में झंझट नहीं लेना कि रिएक्शन दिखा दिखा के हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। दे जस्ट आस्किंग राइट द स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर लिख दिया आपने, एंड आईयूपैक नेम्स ऑफ ABC। ये तो आप लिख सकते हैं, पहला वाला
क्या क्या हो जाएगा बताइए ना। बी क्या है आपके पास? दिस इज अनिलीन। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? ए, दिस इज बेंजामाइड। क्या है ये? बेंजामाइड। व्हाट अबाउट दिस वन? सी स्ट्रक्चर, दिस इज आइसोसाइनाइड और ये फिनाइल। Cyanobenzene. हाँ, फिनाइल आइसोसाइनाइड ना, फिनाइल आइसोसाइनाइड। So can we say cyanobenzene as well? सियानोबेंजीन। Yes. सियानो तो सीएन होता है ना। Oh yeah. ठीक है, आप इसको आइसोनाइट्राइल या फिर आइसोसाइनाइड बेंजीन बोल सकते हैं, या फिर आपको बेंजीन आइसोनाइट्राइल, बेंजीन आइसोसाइनाइड ये भी बोल सकते हैं। Anything else? चलिए एक और रिएक्शन देख लीजिए आप लोग। C7H7O and the nitrogen Br2KOH, फिर से क्या मिल गया आपको? दिस इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, ए का स्ट्रक्चर तो सीधा सीधा मिल जाएगा, डबल बॉन्ड O NH2, है ना। देन क्या आपके पास सी है, तो यानी बी क्या है? दिस इज बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, है ना, NaNO2HCl, ओनो वाला रिएजेंट है। दिस इज गोइंग टू बी N2 पॉजिटिव एंड देन Cl नेगेटिव। Ki के साथ रिएक्शन किया है आपने, बी है, देन दिस इज E। Ki के साथ रिएक्शन किया है तो दिस इज गोइंग टू लीव और आयोडीन लग जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या बोला इन्होंने? बी का रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन किसके साथ? इथेनॉल के साथ। ठीक है, इथेनॉल के साथ ये क्या देता है बताइए? Benzene. वेरी गुड, कुछ तो याद है किसी को? वेरी नाइस, बेंजीन रिंग। दिस इज योर सी स्ट्रक्चर। फिर C6H5NH2 है, C6H5NH2। अच्छा ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर है, CHCl3 एंड KOH। तो आपके पास डी स्ट्रक्चर जो आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी कार्बाइल अमीन रिएक्शन का NC। छापिए। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। कल की क्लास में